Welcome to the Nyaya Shastra lecture series. This is Shambhavi and we are starting the first lecture on the contract law. So let's get started. Today we will study formation of contract. We will start with what is contract? A contract is a legally binding agreement between two or more parties that creates rights and obligation enforceable by law. The formation of contract requires several essential elements, including a valid offer, acceptance, consideration, and the intention to create legal relation. According to Section 2H of the Indian Contract Act, a contract is an agreement enforceable by law. Contract consists of two essential components. First, agreement. A proposal by one party and its acceptance by another is agreement. Second is enforceability by law. The agreement must be legally binding. Section 10 defines what agreements are contract. All agreements are contract if they are made by free consent of parties competent to contract for a lawful consideration with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void. अब यहाँ पे 7 एसेंशियल एलिमेंट्स दिए गए हैं जिनमें से 6 हमारे इस डेफिनेशन में मेंशन्ड है। अग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कंपिटेंसी, कंसिडरेशन, ऑब्जेक्ट और वॉइड। और जो एक एक्स्ट्रा है एसेंशियल वो है यहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले वी नीड टू सी कि ये सातों एसेंशियल एलिमेंट्स आर देयर और नॉट। यहाँ पे एक एग्जांपल है। A agrees to sell a car to B for 5 lakhs. B accepts. This is a valid contract if all conditions are met. All conditions में क्या आ जाएंगे? ये सब अग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कंपिटेंसी, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, वॉइड नहीं होनी चाहिए लॉ के द्वारा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। यहाँ पे एक केस है बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। यहाँ पे क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ होता है जिसमें से मिस्टर बैल्फोर और मिसेस बैल्फोर होते हैं, ठीक। तो मिस्टर बैल्फोर ने एक बार मिसेस बैल्फोर को बोला था कि मैं तुम्हें हर महीने अक्रॉस इंडियन मनी में ही ले लेते हैं, हर महीने 2900 रुपए दूंगा, मतलब 2900 रुपए दूंगा। ये मिस्टर बैल्फोर ने तब बोला था जब वो श्रीलंका में पोस्टेड थे। जब उसके बाद कुछ सालों बाद इनका डिवोर्स होता है तो मिसेस बैल्फोर का कहना था कि मिस्टर बैल्फोर ने अपना प्रॉमिस नहीं पूरा किया। उन्होंने मिसेस बैल्फोर को बोला था कि वो उन्हें 2900 रुपीज हर महीने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट का कहना था कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट लीगली नहीं था, ये बस एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक बात था कि हाँ मैं तुम्हें दूंगा, पर ये कोई लीगल बाउंडेशन के अंदर नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं a husband promised to pay his wife an allowance but the court ruled it was not a contract as there was no intention to create legal relation. Moving forward we have offer which is also called proposal जो कि section 2A में defined है. Definition of offer. An offer, also called proposal, is when a person signifies their willingness to enter into a contract on certain terms. According to Section 2A of the Indian Contract Act, when a person signifies to another his willingness to do or abstain from doing something with a view to obtain the assent of that other, he is said to make a proposal. अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? A offers to sell his cars to B for 3 lakh. If B accepts, a contract is formed. अब यहाँ पे एक केस लॉ है जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ भी है, जो है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल
कंपनी। अब ये पे क्या होता है ना, कि ये कंपनी एक मेडिसिन बनाती है। सपोज ये कोविड के लिए एक मेडिसिन बनाती है, एग्जाम्पल है ये, ठीक है, ये कोविड के लिए। अब ये कंपनी का क्लेम ये था कि जो भी ये मेडिसिन को एज पर द डायरेक्शन लेगा, वो उसे कभी कोविड होगा ही नहीं। ठीक। अब एक महिला रहती है ए नाम की। अब वो क्या करती हैं कि वो इस मेडिसिन को लेती हैं एज पर द डायरेक्शन, पूरा वो फॉलो करती हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोविड हो जाता है। तो यहाँ पे कोर्ट का कहना था कि द कंपनी ऑफर्ड अ रिवॉर्ड फॉर यूजिंग फ्लू प्रिवेंशन प्रोडक्ट, a customer used it but still got sick. The court ruled that the company's advertisement was binding offer. रुकिए, ये गंदा हो गया, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। It was a binding offer. बाइंडिंग ऑफर क्यों हुआ? क्योंकि उस कंपनी का क्लेम ही यही था कि जो भी उस मेडिसिन को एज पर द डायरेक्शन लेगा, उस वो बीमार नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर कोई बीमार पड़ रहा है, तो द कंपनी इज बॉन्ड टू कंपनसेट टू ए, क्योंकि उसने वो क्लेम किया था कि जो भी उसे खाएगा उसका तबीयत नहीं खराब होगा, पर उसके खाने के बाद भी एक का तबीयत खराब हुआ। तो ये एक बाइंडिंग ऑफर था, इसीलिए कंपनी को ए को कंपनसेट करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर सेक्शन 4 डिफाइन करता है, एन ऑफर मस्ट बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी बिफोर एक्सेप्टेंस। अब इसके लिए मैं पहले ही एक एग्जांपल देना चाहूंगी। सपोज एक पर्सन है ए नाम का, ठीक, उसका एक फ्रेंड रहता है बी, ये रहता है रांची में और ये रहता है दिल्ली में, ठीक है। अब क्या हुआ ना कि ए को अपना घर बेचना था, ये उसका प्राइस भी डिसाइड कर लेता है कि 70 lakhs में मैं अपना घर बेचूंगा। ए ने एक सपोज मेल किया बी को, बट बी ने वो मेल रिसीव ही नहीं किया कभी, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन ही कंप्लीट नहीं हुआ। कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होता है अगर ए ने मेल किया और बी ने उसे देखा, बी ने भी रिवर्ट किया, तब यहाँ पे कम्युनिकेशन पूरा कंप्लीट होता। अब पढ़ते हैं आगे। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, रिटन, ओरल, इम्प्लाइड। अब रिटन में वही लेटर्स, ईमेल्स, मैसेज, ओरल में इन पर्सन, फोन कॉल्स, इम्प्लाइड में कंडक्ट, एक्शन। यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसे भी देख लेते हैं। ए सेंड्स अ प्रपोजल लेटर टू बी, जैसे ए ने भेजा था बी को ईमेल। द ऑफर इज कम्युनिकेटेड व्हेन बी रिसीव्स द लेटर। अब यहाँ पे एक केस लॉ है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये भी एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, एक बच्चा होता है, ठीक, जो कि खो जाता है। अब इसकी माँ ने एक रिवॉर्ड रखा होता है, जो भी इसे खोज के लाएगा उसे 501 रुपीज ये गिफ्ट करेंगी एज अ रिवॉर्ड, कि उसके बेटे को लेके आया। अब लालमन शुक्ला ना इन्हीं के घर में सर्वेंट था, ठीक। इसे इस रिवॉर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर इसने ये बच्चा को खोज के लेके आता है। और इसका कहना था कि जब इसे पता चला कि यहाँ पे इसे खोजने पे रिवॉर्ड था, तो इसका कहना था कि मुझे भी पैसे चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना कि सिंस इसको पहले से नहीं पता था कि कुछ ऐसा रिवॉर्ड वो बॉट भी है, ये तो गुड फेथ में ये बच्चा को खोज के ले आता है, ठीक। तो यहाँ पे कोर्ट का कहना था, अ सर्वेंट फाउंड हिज मास्टर्स लॉस्ट बॉय बट was unaware of the reward offer. The court ruled that an offer must be known to be accepted. अब यहाँ पे इसे पता तो था नहीं, नॉलेज तो था नहीं उसे, वो तो बस गुड फेथ में अपना वो बच्चे को खो लेके आ गया था। तो यहाँ पे उसे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नोन नहीं था, तो वो एक्सेप्टेड नहीं था ऑफर उसके लिए।
नाउ वी हैव रिवोकेशन ऑफ ऑफर जो कि सेक्शन 5 में डिफाइंड है। एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड विदड्रॉन बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। अब जैसे मैंने बोला था कि ए और बी वाला जो ईमेल भेज रहे थे, अब ये ईमेल इसे भेजा, जब तक ये रिसीव नहीं करता है, अगर उस बीच में ए ने अपना ऑफर को रिवोक कर लिया कि नहीं भाई अब मुझे नहीं बेचना है, तो वो ऑफर तो वो ऑफर रिवोक हो सकता है। बट अगर ए ने ऑफर भेजा और बी ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद वो ऑफर रिवोक नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम आगे देखते हैं, देखिए। एन ऑफर कैन बी रिवोक बिफोर acceptance but not after. Revocation must be communicated by the offeree. अगर सपोज ए ने ऑफर भेजा बी को और इसे अब नहीं करना है, तो ही हैज टू इन्फॉर्म बी कि भाई मैं अब ये ऑफर रिवोक कर रहा हूँ, मुझे अब नहीं बेचना है। An offer automatically lapses if the offerer or the offeree dies before acceptance. इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का तो है नहीं। The time of acceptance expires. Suppose ए को 4 वीक्स के अंदर घर बेचना था और उसने वो मेल में मेंशन किया था। अब बी 5th वीक में जाके बोल रहा है कि मुझे चाहिए, तो वो ऑफर पहले ही रिवोक हो चुका है क्योंकि टाइम एक्सीड कर चुका है। द ऑफरी रिजेक्ट्स द ऑफर। अब सपोज ए ने भेजा और बी ने बोल दिया कि भाई मुझे चाहिए ही नहीं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो वो रिवोक हो जाता है ऑफर। अब यहाँ पे भी एक एग्जांपल है। ए ऑफर्स टू सेल हिज बाइक टू बी, बिफोर बी एक्सेप्ट्स ए विड्रॉज द ऑफर, दिस इज अ वैलिड रिवोकेशन। एक केस लॉ है, बेरिन वर्सेस वैन टी होवन। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन कैन बी डिफरेंट। The court ruled that revocation is effective only when the communicated to the offeree. अब ऑफर दो तरह के होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल ऑफर, an offer made to a public at large which anyone can accept. Example में a company advertises 1,000 rupees reward for returning a dog. Anyone who finds and returns the dog can claim the reward. अब यहाँ पे केस लॉ वही कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक वाला है, मतलब वही मेडिसिन वाला। तो वो एक जनरल ऑफर था। अब स्पेसिफिक ऑफर, an offer made to a particular person or a group which only they can accept. A offers to sell his house to B, only B can accept the offer. अब सपोज जैसे मुझे घर बेचना था, मैंने बी को ऑफर किया। अब बी के 3 भाई हैं और सी डी और ई, बी को नहीं लेना था, तो मुझे आके ई नहीं बोल सकता कि मैं ये घर लूंगा, क्योंकि मैंने ऑफर सिर्फ बी को किया है, उसके बदले कोई और उसको आके एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पे भी एक केस लॉ देख लेते हैं, बॉल्टन वर्सेस जोनस। अब यहाँ पे द कोर्ट रूल दैट एन ऑफर मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय समवन एल्स। Invitation to treat. An invitation to treat is not an offer but an invitation to negotiate or make an offer. Examples of invitation to treat: price tags in store. A seller invites customer to offer to buy. Advertisements, unless they specify an intention to be legally bound, जैसे कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल वाले में था कि उन्होंने क्लेम किया था कि जो भी ये दवा खाएगा वो बीमार नहीं पड़ेगा। ऑक्शन नोटिस, अ कॉल फॉर बिड्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफर। यहाँ पे भी एक केस लॉ है, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूटकेस्ट केमिस्ट। इसमें डिस्प्लेइंग गुड्स इन अ सेल्फ सर्विस स्टोर वाज एन इनविटेशन टू ट्रीट, नॉट एन ऑफर। अब यहाँ पे आता है कंपिटेंसी, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट competent टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सेक्शन 11 में डिफाइंड है। माइनर्स मतलब बिलो 18,
Below 18. Person of sound mind. Oh, unsound mind, sorry. पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अब यहाँ पर बोलता है कि जो भी 18 प्लस हैं बस वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, साउंड माइंड के होना चाहिए तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस फुलफिल्ड है तभी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और ये 3 कंडीशंस है जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे केस लॉ है, और ये बहुत फेमस केस लॉ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे स्टार मार्क भी करूंगी। अब यहाँ पे क्या होता है ना, एक बच्चा होता है, ठीक, वो एक मेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। इस मेजर ने इसे कुछ एडवांस और कुछ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए, लेकिन ये बच्चा इज नॉट लायबल टू पे हिम बैक, क्योंकि जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, सिंस ये बिलो 18 है, माइनर है, बच्चा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी था ही नहीं। उसके लिए एक लैटिन टर्म यूज किया गया, दैट इज वॉइड एब इनिशियो, जो कि बोलता है कि वो वॉइड था स्टार्टिंग से ही, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं। हाँ, सपोज अगर इस बच्चे के पेरेंट्स वर वेल अवेयर कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है किस चीज से, तो हो सकता था कि लायबल हो, पर तब भी ये क्योंकि बिलो 18 है तो ये लायबल नहीं होता, उसके पेरेंट्स होते हैं। बट अगर यहाँ इसके पेरेंट्स भी को भी नहीं पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और ना इसने उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया है, तो उसके पेरेंट्स भी लायबल नहीं है, और ये बच्चा तो बिलो 18 है, तो ये तो लायबल है ही नहीं। अब in conclusion for this video, I'll say a contract is a legally enforceable agreement that requires a valid offer and acceptance. Offer must be properly communicated and can be revoked before acceptance. Offer can be general, open to all, or specific for certain individuals. Invitation to treat are not offers but invitation to negotiate. Thank you for this video. We will continue in the next lecture.